Good morning, Aprikansai's Hornbill TV la Morning Pulse. Nagaland University la Geography Department bra April 29th और 30th te geochronology और research opportunities la methods upor training और awareness program rakhi se Lumami campus bra. Workshop to Inter University Accelerator Center New Delhi logo de luise aro geochronological methods buji bole karne ase. Geochronological methods to scientific technique ase earth surface process environmental changes और geological events can decode kuru bole. Professor Bendang Ao or Professor M.S. Rawat, Dean of the School of Sciences pra Glacier and Mountain Research Laboratory ke inaugurate kuriya do program laga major highlight ekta thakas. Regional landform evolution ke bujigina sustainable development planning ke support kuru bole geochronological research bishi lagi thaka workshop te highlight kurise. मोक्षुंग दे आओ सेंदन ब्रा नागालैंड सरकार और आओ लेजिस्लेटर्स खान लोगों दे मिलेगी ना महोत्सव फेस्टिवल 2025 ऑर्गेनाइज करिस हेतु इवेंट तो इमकोंग मरीन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ब्रा लोएस एनएलए स्पीकर शारिंगन लोंग कुमकुन स्पेशल इनवाइटी ताकि से ताइब्रा आओ मानु खान गे इसोर लगा फेवर पाई थाकी बोले और भावना कुरु बोले कि इते ताखान कोते ऐसे और कोते जाए ऐसे इतो पर ब्लेसिंग मंग मोले मातिस नागालैंड ला सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट दे आओ मानु डांगो रोल बुखे कोई ना आगे दे थाका पाइनियर्स खान के आजी प्रोग्रेस हुआ लगा फाउंडेशन लगाई दिया क्रेडिट दीस तारो किसे डिजिटाइजेशन और प्रोग्रेस करने दुनिया छुट्टू होया से किंतु हेरिटेज तो खत्म होई जाबले खतरा देसे मौत से तो घुमा बड़ा उठा एकता से कोई ना फोर फादर्स खान ला वैल्यूज खान दे और भी कमिट करू बोले माती से Kalumtans Garden 3. Sugese Pochi NCS Deputy Commissioner Mogokchong SP Mogokchong Department Balala Nungi HOD System District Administration Nungi Iba Muatsu Planning Committee Convener Yanir Members them Asnuktan Asan Sannagar Associate Pastor, Assistant Pastor, Sunguman Baptist Arukunungi, Mogokchung District, GB Association, Tobashi Association, MMC Councilors Term, Ward Palalanungi, Chairman Yanir, Members Term, Sukung Trok Nungi, Lenir Yanir, Census Palalatam, Our Jila Palalanungi Lukti Tundat Asar Kija, Huinaga Rugu, dignitaries, invitees, friends from press media, Asar Iba 2025 Muats Penjumung Ardam. Ajak Tangi, Au Sandan Tanung, Asar our legislator Tanung. Halami to Matsamishiba Penjumung, Iba Mount Tolo. 아그스바트마 방아사 플라네다 아슨 아우슨드니아니어 organizing committee as district officials chapter 단어반은 사트버
단느 그든 필름이 그때 Honorable Minister 덤전님 날롱 그나 사방 간홍 강아 용야스다 리아사 다가 소갈 마버카라 장아 우디라 마루트 안농지파이 바 머든듯 용아 바 살람 아서 greetings 모아츠 살람 아서 아 작던 아직 감사드브라 아서 바 진미스 팔 우지야 마방지 그놈 아자도 아서 농지 니 마방 다 쓰라는 거지 아서 팔 농바이 나 마방 아게 도 쓰네 두모아츠 미시아 너피시아 아몽즈 몽고노 아스노키 대장자 facts 아서 이 녹답바 진정 아강아강아 아스노키 아지 못하다 미우라 아지 아스노키 후바든 동바즈미 시아우즈 나수 농지 니 양아 니 시사당을 아서 필름 당하라 두모아츠 미시바 이며야 안나시노 아스녹든 름사드 버니 무정부바노 아슴킨 모아자루바 당지지 진창동 녹가갈리아 수녹 이바지 카 다나 보바노 고바 나치동농 고바 진성농 아스노키 두모아츠 부시즈라 우스라 멀랑아 아스노키 조롱점농 넉시동 아유바마 자자질라 이바지 다나 보바 모아자루바 금마이가 아슨키니 아니마 와당 아이가 노 아니야루 동디방사 아슨 정말 담아봐 임스 담아봐노 시사즈 90원 Sports, Music and Arts 사이서봉 아슬 정말 모아즈바 선배뜸 알리마든 them 사드 바루바 볼칼 누볼트는 스마바놈 달리사 in public service 아슬 political leadership 이든 뜻은 아작 농지 아스녹 모아자르고 넌 아니고 아스녹기 마바다 좀 아이가 있냐고 아스녹기 But this is not just the first and the final day. It's just a beginning of a 3 long days celebration, 3 days event. We will be witnessing a lot of events, a lot of actions. And throughout this period, I would like to express on behalf of the district administration and the district of Mohokchung to our gratitude to our Honorable Speaker, Nagaland Legislative Assembly, for making yourself available to be a part, spearhead, to kickstart this 3 long days event. It is with your presence,
we firmly believe, sir, that the celebration of Muatsu 2025 come Mini Hornbill Festival Mokchung will be an important event and will be an important landmark in the history of Muatsu Festival. With your kind presence here, as we go ahead, as we inaugurate this program, it is my humble prayer that the people, our people, as well as people from all walks of life, who will be catering, who will be witnessing this great event, will be benefited, will have a lot of things, a lot of positive memories to carry on and to be reflected by each individual, by each organization, by each village councils, by each ranges. Let us hope and pray, I believe and pray that we will have a very memorable time today. Even though we are not witnessing a lot of people, we will be hopefully witnessing a lot of events. A lot of people will be crowding this place for the next 3 days, starting from today. I wish all the participants, as well as all the invitees, to have a memorable, cherishable event in this very location. Muatsu, as we all know, is a celebration of life, a celebration of the end of sowing season, which marks the beginning to go to give thanksgiving to the Almighty. After a hard period of labor that has been put in by the people, it indicates, it marks the beginning to have a relaxed mind, a relaxed atmosphere, praying to the Almighty God for the crops to have a successful and bountiful harvest. It's a time for reflection of community. It's a time for bonding among individuals as well as among the people from all walks of life. As we celebrate Muatsu, Assam Panchayat campaign jai thake homoi CM Himanta Biswa Sarma bra Mikey Khan daga employment upor de comment kuria do AICC General Secretary Jitendra Singh pra bishi disappoint hua janais. Singh bra media lo kotha kuria homoi kuise CM la kotha bra state la Mikey Khan bishi bia lagi jaise aro afsos janaise. CM bra enega kwa do bishi shorom ase koigina kuise. आपने देखा है कि अभी पंचायत चुनाव चल रहे हैं और पंचायत चुनाव के अंदर जिस तरह की राजनीति हो रही है वो मुझे बहुत दुख होता है, दर्द होता है। और खास तौर से माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी बहनें और हमारी माताओं के ऊपर जिस तरह की उनने टिप्पणी करी है, ये बहुत शर्म की बात है। हमारे मातृशक्ति है, हमारी बहन है, हम उनका सम्मान करते हैं। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी देश की संस्कृति है, आसाम की संस्कृति है कि हम अपनी सभी महिलाओं को, हमारी बहन को, हमारी माँओं को, हम उनको भगवान का रूप, देवी का रूप, दुर्गा के रूप में हम उनको देखते हैं। लेकिन उनने इस तरह की भाषा इस्तेमाल करी है जिसमें लाखों लोगों को नौकरी मिली, चाहे वो आंगनबाड़ी हो, चाहे वो नर्स हो, चाहे वो PCS ऑफिसर हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, सभी डिपार्टमेंट के अंदर महिलाओं को नौकरी मिली है। और एक ऐसे समय के ऊपर जो आसाम एक तरह से एक ऐसा अध्याय था आसाम का जहां आसाम के अंदर दंगा हो रहा था, आसाम जल रहा था, आसाम टूट रहा था, उस समय पर
तरुण गोगोई जी की सरकार जब थी, आज जो हम आधुनिक आसाम देखते हैं, उनकी एक बहुत बड़ी देन है। उनकी ये जो टिप्पणी है, ये हर आसामी के दिल में दर्द हुआ है। पूरे देश के अंदर इसके ऊपर मजाक हो रही है, हंस रहे हैं लोग कि एक मुख्यमंत्री जो एक इतने बड़े पद के ऊपर होता है और वही इस तरह की छोटी हरकत, इस तरह की बात कर रहा है, ये मुझे बहुत इस बात की पीड़ा हुई है। या तो वो अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं, वो अपनी डॉक्टर से जांच वांच करवा लें। लेकिन ऐसा मैंने पूरे मेरे राजनीतिक जीवन में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बहुत सारे प्रदेशों में मैंने काम किया है। इस तरह की छोटी हरकत, इस तरह की छोटी बात किसी भी व्यक्ति ने आज तक नहीं करी है। কাষ্ট চেঞ্চাছ লা ফেচলা কেবিনেট পৰা লোৱা পিছতে মিনিষ্টাৰ্ছ আৰু লিডাৰ আলাগ আলাগ পৰা কথা কৰি থাকি আছে। এইটো ওপৰত হিমাচল প্ৰদেশ চিফ মিনিষ্টাৰ সুখবিন্দৰ সিং সুখু পৰা কৈছে কাষ্ট চেঞ্চাছ কাৰণে ৰাহুল গান্ধীৰ পৰা বেছি দেৰি ৰিকুৱেষ্ট কৰি থাকিছে। এইটোৰ পৰা কাষ্ট আলাগ আলাগ কৰিবলৈ কাৰণে নহয়, হলিবি কোনোবা কাষ্টে ইনজাষ্টিছ হৈ কিনা থাকিলে তাহাৰ লগা ৰাইটছতে खड़ा কৰিবলৈ পাৰিব কাৰণে থাকি আছে কৈ কিনা জনাইছে। देखिए, काफ़ी साल से ये सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल चमियाना का बना हुआ था। हमारी सरकार ने इसको आके पूर्ण किया और भारत सरकार से जो पैसे आते हैं उसके बाद वो दोबारा पैसे देते नहीं हैं। हमें अपने रिसोर्सेज से इसको पूरा करना पड़ता है और साथ में जो कंस्ट्रक्शंस है उसको कंप्लीट करने के लिए भी हमने 23 करोड़ रुपया भी स्वीकृत किया है। हमारा मानना है कि हम यहाँ लेटेस्ट मेडिकल टेक्नोलॉजी की बात जो मैं करता आया हूँ, उस सिलसिले में हम आगे बढ़े हैं। इस हॉस्पिटल में और दूसरे हॉस्पिटल में हम हाई एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी लगाएंगे और मेरा मानना है कि अगले कुछ समय में यहाँ रोबोटिक सर्जरी शुरू कर दी जाएगी, जो प्रदेश की पहली रोबोटिक सर्जरी होगी यहाँ और टांडा में। और जो MRI है यहाँ, वहाँ लेटेस्ट MRI हमने स्वीकृत की है और उसके अलावा MRI की जो हमने 3 टेस्ला है वो टांडा में भी स्वीकृत की है, हमीरपुर में भी स्वीकृत की है और नेर चौक में भी स्वीकृत की है। नेर चौक मेडिकल कॉलेज बन गया, आज तक MRI की मशीन नहीं है वहाँ, हमने उसको स्वीकृत किया है। और जो IGMC में MRI की मशीन है वो 19 साल पुरानी है। अब 19 साल पुरानी में मैंने विधानसभा में कई बार कहता हूँ क्या वो देखेंगे, तो इस दृष्टि से मेडिकल टेक्नोलॉजी पर हमारी सरकार ने इस वर्ष कम से कम 200 करोड़ रुपया खर्च करने का प्रावधान किया है और आने वाले समय में जो जोनल हॉस्पिटल है, रीजनल हॉस्पिटल है, उसमें भी मेडिकल टेक्नोलॉजी को अपग्रेड किया जाएगा। हमारा प्रयास है कि हम मेडिकल क्षेत्र को वर्ल्ड क्लास बनाएं और इस दिशा में मैंने विधानसभा में एश्योरेंस भी दी है कि 1 साल के बाद हमारे मेडिकल जो हॉस्पिटल्स है, पर्टिकुलर हॉस्पिटल्स, उसमें हम हाई एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी और अच्छी सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। धन्यवाद। सर, यहाँ पर कितनी बेड्स की सुविधा अभी मिलेगी और थोड़ा और भी रोड का काम भी चल रहा है? यहाँ 337 बेड की सुविधा है और हाई एंड ही ऑपरेशन थिएटर है, कैथ लैब है, हाई एंड सब कुछ है। तो अब धीरे धीरे अभी इनिशियल स्टार्टिंग है, थोड़ा समय लगेगा। आज से IPD भी शुरू कर दी गई है, तो आने वाले 6 महीने में यहाँ पूरी तरह से कंप्लीट इसको हम शुरू कर देंगे। धन्यवाद। जातीय जनगणना को लेकर राहुल गांधी की जो बात है संसद में उन्होंने कही कि वो वायरल हो रही है, क्या कहेंगे? अब देखिए, जातीय जनगणना राहुल गांधी जी ने पहले दिन से उसका अनुरोध भारत सरकार से किया था और जातीय जनगणना का मकसद उनके पीछे कुछ जातियों को विभाजन करना नहीं है, बल्कि ये मानना है कि किसी जाति के साथ जो अन्याय हो रहा है, जो 75 साल की आज़ादी के बाद भी उस संपदा का अधिकार नहीं मांग रहा, उसको उसकी जाति के आधार पर अधिकार मिलना चाहिए। ये सोच है, गणना नहीं है, एक सोच है। तो वो उन्होंने सही की और भारत सरकार ने उनकी बात को माना, इसके लिए हम भारत सरकार का भी धन्यवाद करते हैं। सर, भाजपा पहले इसका विरोध करती थी जब कांग्रेस ये कहती थी, अब ये कह रही है कि कांग्रेस ने कभी फेवर नहीं किया इसका। देखिए, भाजपा का काम है झूठे आंकड़े देकर विरोध करना। अब जब वो जयराम जी नाच रहे थे ना वहाँ, उस समय देशभक्ति की बात नहीं याद आई। हम छोटी सी बात करते थे तो उसमें वो कहते थे। तो आज उनको ये पूछना चाहिए कि देश में जिस प्रकार से निशंस हत्या हमारे पर्यटकों की गई है, हमारे देश के नागरिकों की गई है, उस समय कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं रखना चाहिए था। मैंने तो अपना कार्यक्रम हरोली जाना था, मैंने उसको भी स्थगित कर दिया, क्योंकि इसमें देश में
सबकी एक आम भावना है कि इनके साथ अन्याय हुआ है और हमें न्याय की लड़ाई में जो मोदी जी ने और देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा, उस न्याय की लड़ाई में हमारे राहुल गांधी जी के निर्देश है कि हम उस सब लड़ाई में उसमें शामिल हो। धन्यवाद। ओडिशा चीफ मिनिस्टर मोहन चरण माझी ब्रा लेबर डे 2025 ला दिन दे ओडिशा श्रमिक साथी ऐप लॉन्च करिছে। इतला ऊपर दे ओडिशा लेबर मिनिस्टर गणेश राम सिंह खुंतिया ब्रा कइছে ग्रास रूट लेवल ब्रा उलाई थाकिया प्रॉब्लम्स खान्दो सॉल्व करबले सरकार ब्रा कोशिश करि আছে। इतला एप्लिकेशन लॉन्च करिया दो लेबर ब्रा सब तो इजी ब्रा अप्लाई करबले पारिबो कारणे असे कइना जनाइছে। You know, after forming the government, we are trying to sort out the problem. Most of time, problems are coming from the grassroots level. The government is trying to sort out how could we solve the problem. You know, the Honorable CM has already given statement for the laborers, those who are living in the rural area. So a labour card has been gifted to the labourers as well as an application has been launched. What do you want to say on that? Today we have launched the already mobile app. Basing on that, laborers can apply everything and it will be easy for them. Before they have not get any scope to apply the any labour card proper way. So how the labourers of the state will be benefited under BJP government here? Definitely the laborers and the government will trying to solve their problems. How could they will register their laborers more and more. In future they will get the benefit from the government. ন্যাশনাল সেন্সাস তে কাস্ট সেন্সাস भी मिला बोले कारणे सेंटर बा जनाई दिसे। इतो पदे ऑपोजिशन पार्टीज खान बा फैसला दो वेलकम करिगिना कांग्रेस लीडर राहुल गांधी गे इतुला आइडिया काने क्रेडिट दिसे। शिवसेना यूबीटी एमपी संजय राउत प्रा कइसे कास्ट सेंसास ऊपर दे राहुल गांधी ब्रा 2 साल आगे कथा कुरास कैबिनेट प्रा फैसला दो लुइसे होइल भी क्रेडिट तो राहुल गांधी लोगो जापो कोइना जनाइसे। देखो देवेंद्र फडणवीस की बात आप भूल जाइए, उनको लेवल की बात समझ में नहीं आती, राष्ट्रीय लेवल की, समझा ना। राहुल गांधी जी लगभग 10 साल से चाहे पार्लियामेंट हो चाहे और कोई मंच हो, जातीय जनगणना की बात करते आए हैं। जिस जाति का जितना हिस्सा है उनका हक उनको मिलना चाहिए। ये पूरा बहुजन समाज की बात है। देवेंद्र फडणवीस जी को समझ में नहीं आएगी, उनकी विचारधारा अलग है। देवेंद्र फडणवीस की विचारधारा उस जातीय जनगणना में नहीं बैठती। ये बहुजन समाज की बात है, मैं ये बोल रहा हूं। ये राहुल गांधी का श्रेय है। जरूर कैबिनेट ने निर्णय लिया, लेकिन राहुल गांधी 10 साल से बात कहते आए हैं। तो मैं इतना ही कहूंगा, सरकार मोदी की और सिस्टम राहुल जी की चल रही है और ये चलती रहेगी। आने वाले दिनों में देखो क्या होता है। सरकार को झुकना पड़ा। राहुल जी ने जो बात कही बार बार इस बारे में, वो समाज के, देश के आखिरी तबके तक चली गई। तो बिहार चुनाव सामने है, फिर पश्चिम बंगाल है, फिर और कुछ है, तो सरकार को निर्णय लेना पड़ा। दूसरी बात, राजनीति उसमें भी है। ये पहलगांव हमले के बाद जिस प्रकार का माहौल पूरे देश में बना है, लोग मोदी जी से सवाल पूछने लगे हैं, तो सवाल के ऊपर का ध्यान हटाने के लिए भी ये निर्णय जल्दबाजी में लिया गया। नहीं तो इतने साल से हम बोल रहे, तब निर्णय नहीं लिया, लेकिन कल ले लिया। युद्ध का माहौल है, लोग सवाल पूछ रहे हैं मोदी जी को और अमित शाह को। हाँ, तो ये भी एक मुद्दा है। will be BJP leader बिहार डेप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी बा कइसे सोनिया गांधी, राहुल गांधी, लालू प्रसाद और सीएम नीतीश कुमार प्राइम मिनिस्टर मोदी पर सब लगा सपना तो होसा हुबले कारणे काम दो करियस। महाराष्ट्र मिनिस्टर और स्टेट बीजेपी प्रेसिडेंट चंद्रशेखर बावनकुले ब्रा कइसे बीजेपी ब्रा राहुल गांधी और शरद पवार ब्रा निजोर लगा पार्टीज रेजोल्यूशंस तो पास करबले एक्सपेक्ट करियस। जिस तरह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इस देश के सपनों को साकार करने का काम किया और जातीय जनगणना की शुरुआत की, हमारे प्रभारी मंत्री सभी जो 21 मंत्री हैं, सभी जिले में जाकर इसके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और इस देश में जितने लोग हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की सोनिया गांधी जी हो, राहुल गांधी जी हो, लालू प्रसाद जी हो और हम लोगों के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी हो,
सबके सपनों को पूरा करने का काम जातीय जनगणना करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। और बिहार के विकास में हम क्या योगदान कर सकते हैं, हमारे मंत्री लगातार इस समीक्षा कर रहे हैं और विकास को आगे ले जा रहे हैं। अब भाई देखिए, चार एमपी वाला को क्या क्रेडिट दूं मैं? लोकतंत्र में जनमत होता है, सरकार होता है। प्रधानमंत्री कौन है? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। कैबिनेट से पास किसने किया? नरेंद्र मोदी की सरकार। क्योंकि राजद को काम करने का तरीका पता नहीं है, उनको लगता है कि सब जमीन हमारा ही है, हम ही हड़प ले। जैसे लालू जी ने कहा कि हम तो 1995-96 में यूनाइटेड फ्रंट की सरकार ने इसको पारित किया था, तो 1995-96 में पारित हुआ तो आज तक लागू क्यों नहीं हुआ? 10 साल तक केंद्र में लालू जी के समर्थन से सरकार थी। लालू जी बताए तो इसके लिए अपराधी कौन है? कांग्रेस पार्टी अपराधी है कि आप अपराधी हैं? कि 10 साल, आज लगभग 30 साल पहले जो आपने कानून बनाया, आदेश पारित किया, वो लागू ही नहीं हुआ। ये कौन घोटाला है? और सोनिया गांधी जी को इसलिए मैं याद कराता हूं कि इस देश में राजीव गांधी जी की चर्चा वो करती हैं कि राजीव गांधी जी ने सपना देखा था कि महिलाओं को आरक्षण मिले, किसी ने आरक्षण नहीं दिया, और लालू जी ने तो कॉपी ही फाड़ दिया था बिल का। तो आप याद कीजिए, सबका सपना मोदी जी पूरा करते हैं। ये बेचारे लोग सिर्फ क्रेडिट ले सकते हैं, ये लोग हल्ला कर सकते हैं, यही काम है इन लोगों के पास। कांग्रेस पार्टी हो या राष्ट्रीय जनता दल हो, ये सिर्फ हल्ला कर सकती है, इससे अधिक रोल नहीं। जो समय मांगा है जाति जनगणना पे, उस पर क्या कहेंगे? हिंदी में बताइए। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके कहा है कि जाति जनगणना में कितना समय लगेगा? राहुल गांधी को अधिकारी नहीं है भाई। राहुल गांधी कुछ करे तो मोदी जी का खुलेआम अभिनंदन करे, खुले डायस पर जाकर। ये कांग्रेस की सभा बुलाए, उसमें ठराव पारित करे। राहुल गांधी कांग्रेस की सभा बुलाए, एक ठराव पारित करे कि मोदी जी का अभिनंदन। ये अपेक्षा है राहुल गांधी से। ये अपेक्षा है मुझे शरद पवार जी, उद्धव ठाकरे की मेळावा में। ये अपेक्षा है मुझे, ये उदय वडेट्टीवार बहुत चिल्लाते थे, नाना पटोले जी चिल्लाते थे। उन्होंने तो विधानसभा गृह में ठराव लिया था नाना पटोले ने कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। लेकिन अभी कहाँ गए? अभी उन्होंने पार्टी का सम्मेलन लेना चाहिए अपने अपने पार्टियों का, उसमें अभिनंदन करना चाहिए। हमने निर्णय लिया है, भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र 1,186 बूथों पर मोदी जी का अभिनंदन करेगी। हमारे जयकुमार रावल जी ने कहा है, हमारे 27,000 ग्राम पंचायती ग्राम सभाएं हमारे मोदी जी का अभिनंदन करेगी, जिन्होंने जनगणना का निर्णय लिया है। आज देखिए, हम वेट कर रहे कल से कांग्रेस पार्टी के नेताओं का और बाकी नेताओं का, जो चिल्ला रहे थे देश के नेता, जनगणना चाहिए, जनगणना चाहिए। आज मोदी जी ने जो 1948 में 780 वगैरह यहाँ पर शेड्यूल ट्राइब और 1286 वगैरह शेड्यूल कास्ट, इतनी ही जनगणना थी। आज पूरे 5000 जातियों को देश की, ओबीसी का अगर दिया जाए 2686 जातियों को इस जनगणना से फायदा होगा। और जनगणना का लाभ क्या है? सामाजिक समता है। जनगणना से क्या होगा? हर समाज में कोई ना कोई व्यक्ति गरीब है, एक व्यक्ति बड़ा है, एक व्यक्ति छोटा, एक व्यक्ति ऑफिसर है, उसी समाज में एक व्यक्ति चपरासी है। तो ये छोटा समाज और ये छोटे लोगों को उसमें जनगणना में सरकार के सामने जो आंकड़ेवारी आएगी, जो सेंसस आएगा, वो सेंसस आने वाले दिनों में गरीब आदमी के हित में होगा। तो itu tagasi, itiala bulletin kani aro alag-alag kubur kani site agbi Hornbill TV. Goodbye.